Okay, be type verbs, and the present form of is MR, be type verbs is MR, and past form of is be type verbs is was verb. You have done this, and then we explain some situations before you. One is to tell about a relationship between or among people. You use is MR or was verb according to the situation. In present situation you will use is MR, and in past situation you will use was verb. She is my sister, he is my uncle, like that. And then to describe persons or things. Describe the negative or the positive points of some personalities or some things, you can say. This building is very large. What is the positive quality of this? Largeness. They are very hard working and sincere. This is about negative and positive points of something or some person. To tell about the state of mind and any situation. He is very hopeless about his future. We are very hopeful of getting very good marks. So these are all states of mind. To mention about profession, occupation of a person, she is a dentist and her father is a physician. Okay. Now to make continuous tenses, we use is MR. In present continuous tense, we use is MR plus present participle, first form of verb with ing. And in past situation, we use past continuous, we use was verb plus present participle. Birds are flying. She is completing her homework. Past continuous tense. She was writing something in her book when I saw her yesterday. So was writing, this is past continuous tense. In passive construction of present simple and past simple, we use, in present simple we use is MR plus past participle, means third form of verb, and in past simple we use was verb plus third form of verb, past participle. Present simple, in my kitchen food is always prepared by a maid servant. This is passive construction. When you find is plus third form of verb, this is passive. And object comes in the beginning. Food is object. Food is always prepared by a maid servant. 2 robbers were killed. This is passive construction. Who killed? This is not important for you. But the arrest of the killing of the robbers was important for you. Then passive construction in present continuous tense. These 2 slides were missing yesterday. These 2 slides are new for you. Passive construction in present continuous tense. How? I am singing a song. A song is being sung by me. If you speak Hindi of this sentence, I am singing a song, मैं गीत गा रहा हूँ. एक गीत मेरे द्वारा गाया जा रहा है. गीत को आप शुरू में ले आओ तो. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What is being done by you? आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? Who is knocking at the door? By whom is the door being knocked at? So is MR plus being plus third form. This is passive construction of continuous tense, present continuous tense. Passive construction in past continuous tense. Similarly, we use being in past continuous tense. I was singing a song was being sung by me. What were you doing? What was being done by you? Who was knocking at the door? By whom was the door being knocked at? Then persuading somebody, Mohan, you are to stay at home. Mohan, तुम्हें घर रहना है. मुझे कल दिल्ली जाना. I am to go to Delhi tomorrow. When some politeness is there, you have so many options for that, 3-4 options. You can also say, Mohan, you will go to Delhi tomorrow. You will stay at home. You have to stay at home. So degree of insistence or compulsion increases. But polite way is, Mohan, you are to stay at home. Mohan, you will have to stay at home. This becomes somewhat command. Some force is given. You will have to, then more emphasis is given in that compulsion.
and force is given. When compulsion is out from outside, then have to is used. जब बाहर का कंपल्सन होता है तो हम हैव टू यूज करते हैं. अंदर के लिए आप अपनी तरफ से कर सकते हो. आई एम टू स्टे एट होम, इच्छा है आपकी, तो उसमें इज एम आर प्लस टू इन्फिनिटिव बोलते हैं. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है, जैसे आई वांट टू से समथिंग, वांट आपका मेन वर्ब है, आई वांट मैं चाहता हूँ कुछ कहना, टू से टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनिटिव यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. So then this is over about B type verbs. Now we are taking have type verbs in detail. As primary verb, जैसे हमने is am are खाली यूज किए, अकेले यूज करें बिना किसी और वर्ब के, तो एज प्राइमरी वर्ब बोलते हैं उन्हें. तो हैव टाइप वर्ब भी प्राइमरी वर्ब होते हैं जब ये पोजेशन शो करें, आधिपत्य शो करें. तो एज प्राइमरी वर्ब द प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव, द पास्ट फॉर्म हैड, फ्यूचर फॉर्म विल हैव शैल हैव. इन परफेक्ट टेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस becomes with the help of has have. Present perfect continuous tense also becomes with the help of has have. Then past perfect tense becomes with the help of had. Past perfect continuous tense becomes with the help of had been, etc. Future perfect will have shall have. So this is the list where has, have, had are used. Now one by one you can take passive construction also. Passive perfect tense, present perfect tense, then past perfect tense in passive construction, and lastly in sentences showing compulsion, have to, has to, had to. As primary verb, present form of have type verbs. When has or have are used alone with any other form of verb, they are called primary or main verbs. I have some secrets to tell you. Won't you listen to me? I have some secrets to tell you. This is possessive only, has have. She has many costly necklaces in her bag. I wonder as to where she has got them. Close it. I have a book. You can use has have to show your possession. Okay? अधिपत्य शो करने के लिए, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये था. आप हैज, हैव, हैड का यूज कर सकते हो. प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव होता है और पास्ट फॉर्म हैड होता है. सिंपल, ये तो बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश है यहाँ पे. Once his father had many acres of land, but now he hasn't any. Do you have question आप do से बना सकते हो, जबकि have से भी बन सकते हैं. Have you something? Do you have something? Equivalent है. But usage of do or does with have is more prevalent. ये ज़्यादा मान्य है. Do you have something to say? Does she have any money? क्या उसके पास कुछ पैसे हैं? कोई any और some में क्या फर्क होता है? ये डिटर्मिनर अलग से भी बनते हैं, फिर भी बता देता हूँ मैं. जब आप किसी से पूछते do you have some money या do you have any money, some money कहोगे तो it means the speaker is positive, hoping that the person is having money, कि आपके पास पैसे होंगे और आप दे दोगे. Do you have some money? Do you have any money? It means स्पीकर को उम्मीद नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हैं. Do you have any money? तो some और any इस तरह चलता है. Present perfect tense काफी इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत यूज होता है, एंड इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के साथ काफी कंफ्यूजन होता है इसका. जब लगे कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, तब आप हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो. इसके कुछ कीवर्ड है, अगर आप उनको भी याद कर लो तब भी ये टेंस आपके पास ही रहेगा. मीनिंग समझने के लिए पीरियड इज मेंशन इन दिस टेंस. दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुडे, और अभी अभी, जस्ट नाउ, राइट नाउ. आप इस तरह देखो,
present perfect tense is not purely past, not purely present. इसमें शेड्स होती हैं, जैसे दिन में आप सुबह में अंधेरा भी होता है, उजाला भी होता है, ना रात है ना दिन है, शाम ना रात है ना दिन है, तो शेड्स हैं. शेड इसमें पास्ट टेंस की भी है और प्रेजेंट टेंस की भी है. जैसे आप कहते हो मैं अभी अभी अंदर आया हूँ, मैंने अभी अभी खाना खाया है. खाना खा लिया वो तो पास्ट का है, एक्टिविटी तो पास्ट की बन गई, बट अभी अभी कह रहे हो, उसका जो फीलिंग है आप अभी भी महसूस कर रहे हो. उसका इफेक्ट जो होता है पास्ट की इवेंट का आपके ऊपर होता है. देन यू यूज दिस टेंस. आई हैव जस्ट ईटन फूड मीन्स यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट फीलिंग हंग्री. अगर आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, नो आई हैव जस्ट हैड, आई हैव जस्ट हैड. अभी आई हैव जस्ट टेकन, हैड की जगह टेकन भी यूज कर लेते हो आप. आई हैव जस्ट टेकन, तो उसका अभी टेस्ट आपके जुबान पे है, देयर फॉर यू यूज दिस. और भी इसकी कई बातें हैं, आई विल टेल यू. मैंने खाना अभी अभी खाया फिलहाल, तो दिस इज इंट्रोडक्शन. अलग से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ले लेंगे किस दिन, तो डिटेल में आपको बता देंगे. आई हैव ईटन फूड, यहाँ तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हैज हैव हैड कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना, पास्ट परफेक्ट इससे बनेगा हैड से. आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, क्या तुमने यह फिल्म देख ली है? हैव यू सीन दिस फिल्म मूवी? हैव यू सीन दिस मूवी? यस आई हैव. व्हेन? लास्ट वीक. जब आप मेंशन कर देते हो टाइम, पिछले सप्ताह, दैट बिकम सिंपल पास्ट टेंस. 4 वर्ड उसके याद रख लो. पिछले, लास्ट, यस्टरडे, ईयर कोई मेंशन करते हो या एगो यूज करते हो, पहले 10 दिन पहले, 10 मिनट पहले. सेकंड फॉर्म यूज करोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस के, आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं सिंपल पास्ट के? जैसे आप ये कहते हो आई सॉ दिस फिल्म लास्ट वीक. व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? आई डिडंट सी दिस फिल्म लास्ट वीक. डिड नॉट सी. To make negative of simple past tense or past simple tense, we use did plus first form. Question, did बाहर use करोगे तो did you see this film last week? No, I didn't see. Yes, I saw it. Second form positive second form से बनते हैं simple past tense की. 4 वर्ड अगर याद रख लो, जब आप मेंशन करते हो टाइम, तो एकदम सिंपल पास्ट में आना होता है आपको. इवन हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट है उसमें टाइम नहीं मेंशन होता, भले ही वो घटना आपके बहुत नज़दीक की हो, अगर आप उसके बारे में भूल गए हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करोगे. जैसे आप कहते हो कई बार आई हैव लॉस्ट माई की, चाबी खो गई है. हैव लॉस्ट माई की, इम्पैक्ट क्या है उसका? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लूजिंग योर की ऑन योर प्रेजेंट? क्या I cannot unlock the door. I cannot unlock my bike. I have lost my key. वो impact उसका आ गया. और कोई पूछता है आपसे, आपस में ही पूछते हैं where did you put it? कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी आपने? पता नहीं कहाँ रखी थी. आप कहते हो I don't know where I put it. हाँ, यहीं कहीं रखी थी. आप टाइम नहीं पता आपको कब रखी थी, कहाँ रखी थी वो भी नहीं पता. आई हैड पुट इट हियर, वो भले ही 5 मिनट पहले की घटना, यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में वो पीछे चला जाएगा पास्ट टेंस. रिमोट पास्ट इसको कहा जा सकता है. इट्स वेरी डिस्टेंट पास्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला बहुत दूर का पास्ट होता है. रोगी मर चुका था, पता नहीं कब मरा था, द पेशेंट हैड डाइड. या फिर दो एक्शन पास्ट टेंस में हुए हो, एक के बाद एक, और दोनों में गैप हो. जब डॉक्टर पहुंचा तो रोगी पहले ही मर चुका था, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? रोगी पहले मरा था, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बनेगा. और जो बाद में हुआ एक्शन वो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा. व्हेन द डॉक्टर रीच्ड देयर द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी. द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन. जब मैं कॉलेज में पहुंचा पहली घंटी बज चुकी थी. द फर्स्ट बेल हैड रंग व्हेन आई एंटर्ड माय कॉलेज.
तो इस तरह से दो साइमल्टेनियसली एक्शन होते हैं, एक पहले हो चुका है और उसके बाद में, मतलब साइमल्टेनियस तो नहीं कहेंगे, एक पहले हो चुका है एक उसके बाद में, देयर इज अ गैप। और जब दो एक्शन में गैप ना हो कोई भी, तो क्या आएगा? चोर ने पुलिस को देखा और तुरंत ही भाग लिया, कोई गैप है इसमें? देखा और भागा, गैप करेगा तो पकड़ा जाएगा वो, राइट? तो दोनों में सेकंड फॉर्म आती है। जो ही चोर ने पुलिस को देखा, एज सुन एज मीनिंग ही यही है कि एकदम हुआ एक्शन। द मोमेंट the thief saw the police, he ran away at once. As soon as the thief saw the police, he ran away at once. As soon as I came out of my house, it started raining heavily. भारी बारिश शुरू होगी। जब दो एक्टिविटी एक के बाद एक सेकंड्स के गैप पे खत्म होती हैं, एक खत्म हुई दूसरी शुरू हुई, दोनों में पास्ट सिंपल आता है, V2 सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेकंड फॉर्म आती है। और जब एक एक्शन पहले हो गया उसके बाद हुआ, एक में सेकंड फॉर्म जो बाद में, और जो पहले हुआ हेड प्लस एडवर्ब। ये बहुत यूज करते हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन पास्ट टेंस में का तीन चार सिचुएशन है। अभी मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ। दो तो होगी, एक एक्शन पहले खत्म हुआ एक बाद में हुआ, पहले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड में सेकंड फॉर्म। फिर हमने बताया दोनों एक्शन फटाफट एक के बाद एक, दोनों में सेकंड फॉर्म। अब लेते हैं एक इनकम्प्लीट एक्शन, एक कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट टेंस। कंप्लीट एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म, और इनकम्प्लीट जो कि चल रहा है अभी, यू विल यूज वाज वर्ब प्लस वर्बिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? जब मैं घर पहुंची या पहुंचा, माँ खाना बना रही थी। when I reached my home, my mother was cooking food. My mother was cooking food. Cooking activity was going on. When I reached home, this activity finished. आपका वहाँ पहुँचना finished हो चुका है, therefore second form. और जो activity imperfect है, अभी continue है, incomplete है, that will take past continuous tense because situation belongs to past tense. जब मैं घर पहुँचा बारिश हो रही थी। When I reached home, it was raining. And this was third situation. Fourth is जब दोनों एक्टिविटी इकट्ठी चल रही हो, वो भी एक्टिविटी चल रही, वो भी, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे, अनयूजफुल एक्टिविटी। द टीचर वाज टीचिंग, द चिल्ड्रन वर मेकिंग। वाइल आता है अक्सर इसमें, वाइल द टीचर वाज while the students were making a noise, while the students were dozing off. दोनों एक्शन इकट्ठे चलते। देयर आर 4 सिचुएशन। पहली में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और V2 का कॉम्बिनेशन था, सेकंड में V2 का कॉम्बिनेशन था, देन इन द थर्ड सिचुएशन वी टुक वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल, and in the fourth one past continuous plus past continuous. Okay, come to now. This is present perfect tense में भी हम has have use करते हैं, and then passive construction of present perfect tense. यहाँ पे मैं has have had जहाँ जहाँ आते हैं I am taking all the situations. पहले हमने क्या लिया? प्राइमरी वर्ब के रूप में possession शो करना, I have a book. Okay, he has many acres of land. Present, he had many acres of land. Past tense, possession शो किया. Then we came to present perfect tense. We used has have third form. The patient has died recently, just now, अभी अभी. When you feel that some action has been finished recently, अभी अभी कोई एक्शन लगे, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे हो, you use present perfect tense for that. Passive construction of present perfect tense, to make passive construction of okay, इसमें object prominent हो जाता है and subject goes in the background. This letter has been written by me. आप ये भी कह सकते हो I have written this letter, है ना? But in most cases passive is preferred. बहुत सी केसेस में पैसिव कंस्ट्रक्शन इज मोर प्रीफरेबल, जहां मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहते हो चोर पकड़ा गया है,
द थीफ हैज बीन कॉट, द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया है. पुलिस हैज कॉट द थीफ, ये गलत है. पुलिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. 30 people have been rescued. 30 लोग बचा लिए गए हैं. Some debris of the plane have been spotted. Debris of the plane which was missing have been spotted somewhere. तो ढूंढ लिए गए हैं. ये जब आप ऑब्जेक्ट को शुरू में रख रहे हो, ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू देन यू यूज पैसिव कंस्ट्रक्शन. हर जगह पैसिव नहीं यूज होता. जैसे आप कहते हो ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये पत्र आपके लिए. आपको आई हैव रिटन दिस लेटर, है ना. हाँ, डाइनिंग टेबल पे कई बार होता है ऐसा. ये आप कई बार लाइमलाइट में लाने के लिए ये डिश मेरे द्वारा बनाई गई है. आप उसकी जगह आप एक्टिव प्रीफर करोगे या पैसिव करना हो तो पैसिव कर लो. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसको लाइमलाइट में लाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को या अपने आप को. आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डिश. आपकी मदर कह सकती है दिस डिश हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माय डॉटर, प्रिपेयर्ड बाय माय डॉटर. ये बेटी ने बनाई है, बेटी के द्वारा बनाई गई है. आप अपने आप को कहो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डिश. तो पैसिव कहाँ यूज करना, दिस इज ओनली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इंपॉर्टेंट क्या मानते हो. तो हैज हैव टेक दे कम आल्सो इन पैसिव कंस्ट्रक्शन. खिड़की का शीशा मेरे द्वारा तोड़ा गया. आप बड़े उसमें आप अपने आप को कि मैंने तोड़ा है, ये एक तो ये मेरे द्वारा तोड़ा गया है. दिस विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय मी. बच्चों की पिटाई बड़ी बेहर है. यहाँ पैसिव काफी ठीक है. बच्चों की पिटाई बड़ी बेरहमी के साथ की गई है. जैसे कोई विजिट करने आए हैं ऑफिशियल्स, वो कहते हैं बहुत बेरहमी के साथ पीटा गया है इन्हें. किसने पीटा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट. तो ऐसी जगह पे न्यूज हेडलाइंस में देखते होंगे आप, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन चलती हैं आमतौर पे. द चिल्ड्रन हैव बीन बीटन मर्सीलेसली. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन कल किया था हमने. सुबह से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. टाइम डाल दो, इट हैज बीन रेनिंग. सुबह से 2 घंटे से इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. जब आप टाइम पे फोकस कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है. अदरवाइज प्लेन बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. पास्ट परफेक्ट टेंस, जब मैं घर पहुंचा बारिश बंद हो चुकी थी. When I reached home, the train had stopped. वही एक्शन एक पहले हुआ एक बाद में. डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी होश में आ चुका था, आ गया था. The patient had come to senses before the doctor came. Passive construction in past perfect tense. Active. People had cremated the dead body before the police came. यहाँ this is active formation. And पुलिस के आने से पहले लाश का दाह संस्कार कर दिया गया था. The dead body had already been cremated before the police came. तो passive it depends upon you. Been लगता है past perfect tense में. Past perfect continuous में जब मैंने क्लास में प्रवेश किया तो अध्यापक 1 घंटे से पढ़ा रहा था. When I entered the class, the teacher had been teaching for 1 hour. यहाँ टाइम डाला इसलिए had been आया. अदरवाइज क्या होता है, अगर टाइम निकाल दे इसमें क्या बनेगा. अध्यापक पढ़ा रहा था, जब मैं क्या बनेगा. द टीचर वॉज टीचिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम. 1 घंटे से पढ़ा रहे थे. द टीचर हैड बीन टीचिंग. द टीचर वॉज हैड बीन आया फॉर 1 hour. द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 1 hour व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम. बारिश सुबह से हो रही थी जब मैं घर से बाहर निकला. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई केम आउट ऑफ माई हाउस. टाइम हटा दो, वाज वर आईएनजी में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा. 7th इज फ्यूचर परफेक्ट भी इसी से हैज हैव हैड से बनते हैं. हैज हैव से बनते हैं. हैव यूज करते हैं, इसमें हैज नहीं चलता ना हैड चलता है. मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँगा जब मेहमान कल आएंगे. दिस इज सपोजिशन. फ्यूचर एक कल्पना है, आप कल के बारे में
कि जब मेहमान घर पहुंचेंगे तो मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। आपको चिंता लग रही है कि पता नहीं होमवर्क होगा कि नहीं होगा, आप फिर कहते कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन द गेस्ट अराइव होम टुमारो। और जब गा दोनों तरफ होता है तो दोनों तरफ फ्यूचर नहीं आएगा। सबॉर्डिनेट क्लोज व्हेन से हो, इफ से हो, दैट टेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आप ये नहीं कहोगे इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, नो, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो व्हेन से हो सबॉर्डिनेट क्लोज, चाहे इफ से हो, तो फ्यूचर टेंस में मीनिंग जा रहा हो तो दैट टेक्स सिंपल पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बारिश समाप्त हो चुकी होगी जब मैं कल घर पहुंचूंगा। द रेन विल हैव स्टॉप्ड व्हेन आई रीच होम टुमारो। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देखो, एक साइड पे फर्स्ट और इधर विल से लाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब मेरे पिताजी दिल्ली से लौटेंगे तो मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूँगा या कर रही होंगी। आई विल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours व्हेन माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली। I will have been doing my homework for 2 hours when my father returns from Delhi. क्या वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही, दिस इज रॉन्गली स्पेल्ड, जब तुम कल डोरबेल बजाओगे। She will have been waiting for you for 2 hours when you ring the doorbell tomorrow. तो इसमें टाइम डाल दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, विल हैव बीन आ जाता है। अदरवाइज फ्यूचर कंटिन्यूस बनता है विल बी शैल बी से। ये क्लियर है आपका? ओके। फ्यूचर कम ही यूज होते हैं वैसे तो। टू शो कंपल्सन, लास्ट, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वंशिका को कल कॉलेज जल्दी आना पड़ा, वंशिका हैड टू कम टू कॉलेज अर्ली यस्टरडे। तुम्हें मेरी दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू माई वोफुल टेल, दुख भरी कहानी। वो मीन्स दुख होता है, वोफुल टेल। ओके, दिस इज ओवर नाउ। तो आपने इसमें हैव प्राइमरी वर्ब के रूप में, देन परफेक्ट टेंसेस, कोई भी परफेक्ट टेंस हो आप उसमें करो। लिस्ट आपके पास है, यू हैव गॉट द लिस्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेस। पैसिव उसमें ऐड कर सकते हो, यू यूज हैज, हैव, हैड। नाउ वी कम टू स्पोकन पार्ट। द क्वेश्चन इज दैट इज ऑफन यूज्ड इन इंटरव्यूज, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कैसे अपनी इंट्रोडक्शन दोगे इसमें, व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर टोल्ड टू स्पीक, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यस, आई विल कॉल बाय नेम, देन यू विल कम वन बाय वन। आज प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, फिर उसको आप फाइनल कर लेना क्वेश्चन। ओके, this is a list of MCA previous.